برطانوی دفتر داخلہ نے ہنرمند اور بہتر کاروباری منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے نئی ویزا پالیسی متعارف کرا دی ہے۔ نئی اسکیم کے تحت کاروباری وزٹ پر برطانیہ آنے والے اپنی ویزا کیٹیگری تبدیل کرا سکیں گے۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین نوان کی رپورٹ میں۔ برطانیہ نے ملک میں ہنرمند افراد اور بہتر کاروباری مواقع کے لیے نئی ویزا پالیسی متعارف کرا دی ہے، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ نئی ویزا پالیسی کو متعارف کرانے اور اس سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے معروف امیگریشن فرم فارانی ٹیلر نے وکلاء ٹیم کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ لا فرم کے MD فرحان فارانی اور سولیسٹرز دوست محمد، شہزاد سعید، ادیب احمد اور فامینہ فارانی کی مشترکہ پریس کانفرنس میں ہوم آفس کی نئی پالیسیوں سے آگاہ کیا گیا اور صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے گئے۔ ان لوگوں کے لیے جو گریجویٹ ہیں یا نان گریجویٹ ہیں، جو پاکستان سے یہاں آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کیٹیگری کہلاتی ہے پروسپیکٹو انٹرپرنور وزٹر۔ تو وزٹر کے طور پہ وہ یہاں پر آئیں گے، ایکسپلور کریں گے، تھوڑا بہت کام کرنے کی بھی انہیں اجازت ہے، وہ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے ذریعے وہ سیٹلمنٹ کے روٹ پہ انٹر ہو سکتے ہیں، وائی اسٹارٹ اپ اینڈ دین انوویٹو۔ امیگریشن کے حوالے سے اس وقت جو سب سے بڑی چینج بہت عرصے سے 2018 سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ اب آ چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ فلسفی اس وقت یہ ہے کہ برٹن چاہتا ہے کہ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کہ کس انڈسٹری کے اندر جا رہی ہے، کس سیگمنٹ میں جا رہی ہے، اور یہاں کی جو UK کی امیگریشن ہے وہ اس وقت ساری پالیسیز ریفلیکٹ کریں گی کہ برٹن میں ضرورت کس چیز کی ہے۔ اس وقت یہاں پہ ضرورت ہے انوویٹو آئیڈیاز کی، جیسا کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے اوبر، اور اوبر نے پھر آگے سے اوبر ایٹ کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح کے نیو انوویٹو آئیڈیاز کے لیے انویسٹمنٹ اب لیس امپورٹنٹ ہے، آئیڈیا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ It applies to people with unique and innovative ideas to come into the UK in order to promote their business. They need endorsement, and it's a very welcomed and streamlined approach. So we would invite everyone who's got innovative idea to take full use of this new scheme which the government has introduced, which I feel will be very beneficial not only to the economy but to our individuals in Pakistan and the subcontinent. جو انویسٹمنٹ ویزاز تھے پہلے 1 ملین کا ہوتا تھا، پھر 2 ملین کا ہو گیا، اس میں منی لانڈرنگ کی شکایت آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ جو انٹرپرینور ویزا ہے اس میں لوگ جو تھے وہ بزنس جس قسم کا UK میں خیال تھا کہ لوگ آ کے مینوفیکچرنگ میں اور کوئی نئی چیزوں میں انویسٹ کریں گے، کیونکہ انٹرپرینور ویزا جو ہے اس کا مقصد کے لیے نہیں دیا گیا کہ آپ مکان خرید کے کرائے پہ دے دیں اور اس کو بزنس کہیں، یا آپ فیول اسٹیشن کھول کے تو آپ کہیں گے جی بزنس ہو گیا ہے۔ اسی لیے یہ انویسٹمنٹ ویزا اور انٹرپرینور ویزا اس کی ایک ریفائنڈ شکل آئی ہے۔ جو مین چیز ہے اس کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس میں ایک جو چیز ہے وہ اسکل مارکیٹ، اسکل لیبر آئے گی جس کا کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو، انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہو، اور وہ جو چیز ہے پوری اکانومی کے اوپر اور نیشنل جو امپلائمنٹ ریٹ ہے اس کے اوپر جو مین ڈفرینس ہے کہ اسٹارٹ اپ اسپیشلی جو کہ ینگ ٹیلنٹ کو فوکس کرتا ہے، اس میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے آپ کے پاس 50,000 پاؤنڈز انویسٹمنٹ کے لیے ہوں۔ سیکنڈلی آپ اگر آتے ہیں یہاں پر، آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کے پاس اسکلز ہیں، لیکن اس بزنس کے ذریعے آپ کی اسکلز انہانس ہوتی جا رہی ہیں، آپ دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، اکانومی کو، آپ اپنے آپ کو بھی انہانسمنٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ دا مین بیوٹی از کہ ایز اے اسٹارٹ اپ ایپلیکنٹ آپ کو جاب کرنے کی یہاں پر پوری اجازت ہے اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس، جو کہ پہلے اسکیم کے انڈر نہیں تھی۔ فرحان فارانی کا کہنا تھا کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے ہنرمند افراد کو منگوا کر گیپ کو کور کیا جائے گا۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں سکھوں کا روایتی بیساکھی میلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر مرکزی گردوارہ سے لے کر ناور پارٹ تک جلوس نکالا گیا، جس میں سینکڑوں سکھوں نے شرکت کی۔ راستے بھر شرکاء کی تواسو مختلف قسم کے کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی رہی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین نوان سے۔ پنجاب میں موسم بہار کے آغاز اور سن 1699 میں گرو گوبند سنگھ پنتھ کی تشکیل کی تقریبات کا آغاز۔ لندن میں سکھ برادری کے سب سے اکثریت والے علاقے ساؤتھ ہال میں نگر کرتن کا جلوس نکالا گیا، جو روایتی ڈھول اور پنجابی سنگتوں کے ساتھ اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔
जुलूस में सैकड़ों सिखों ने अपने अहल खाना के हमरा शिरकत की। इस दौरान रास्ते भर में मुख्तलिफ स्टाइल लगाए गए, जहाँ सारे दिन लोगों की तवाज़ो मुख्तलिफ पंजाबी खानों से की जाती रही। जुलूस में पंजाबी कल्चर का रंग नुमाया रहा। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और सिख कम्युनिटी गुरु गोबिंद सिंह की मुनासबत से लोकगीत भी गाती रही। इस मौके पर शुरुका ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए लोगों को बैसाखी की मुबारकबाद दी। बैसाखी के त्यौहार ते समूह जगत नूं, कौम नूं, सिख पंथ नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। महाराज चढ़दी कला बख्शण। खालसा पंथ के साजना दिवस की समूह संगत नूं लख लख बधाई होवे। गुरु महाराज चढ़दी कला बख्शण, गुरसिੱਖੀ जीवन नाम दी दात बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज नगर कीर्तन निकलिया विसाखी दे खालसा साजना दिवस ते मौके जिहड़ा बूटा गुरु नानक पातशाह ने लाया सी उस नूं सही रूप देण वास्ते, उहनूं प्रगट करन वास्ते खालसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रगट कीता। तो बहुत उत्साह ਅਤੇ प्रेम संगतां दे विच आए होए ने, मना रहे ने। इस तो बाद 550वां साल गुरु नानक पातशाह प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ UK ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਜੀ 550ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ 550 ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਵਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਬ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। हैप्पी विसाखी, हैप्पी विसाखी, हैप्पी विसाखी। जुलूस के एहतराम में रजाकार जुलूस के रास्तों की सफाई भी करते रहे, जबकि पुलिस के साथ सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी अदा की। दुनिया भर में बैसाखी और नगर कीर्तन की तकरीबात जारी हैं। लंदन के इलाका साउथ हॉल में सबसे बड़ा नगर कीर्तन का 550वां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉलैंड के ज़ेर इंतज़ाम एम्स्टरडैम में यौम पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हॉलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी तारकीन वतन की कसीर तादाद शरीक हुई। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान की सादा और पुरवकार तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हम सब का दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तकरीब से पाकिस्तानी कम्युनिटी की नामवर शख्सियात ने खिताब किया, जिनमें अनवर साकिब, डॉक्टर गुलशेर, चौधरी खालिद महमूद और गुलाम हुसैन कयानी नुमाया थे। अपने खिताब में उन्होंने यौम पाकिस्तान की अहमियत उजागर की। हर नेमत पैदा की है उस धरती में, उसकी एक तरफ 50 टेम्परेचर होता है और सेम टाइम दूसरी तरफ माइनस टेम्परेचर होता है। उसमें दरिया भी दिए हैं, उसमें समंदर आपको दिए हैं, उसमें मादनियात आपको दिए हैं और उसमें बड़ी मेहनत करने वाले लोग भी आपको दिए हैं। लेकिन जो लीडरशिप जिस तरीके से शायद अल्लाह ताला इस कौम का इम्तहान ले रहा था इतने सालों तक, और आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला को शायद 70 सालों के बाद इस कौम पे रहम आ गया है। जिन लोगों ने नोच नोच के लौटा, उनको जो गरीब हमारे लोगों के चेहरों पे गुर्बत लिखी हुई है उनको नजर नहीं आती। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो वतन अजीज की तरक्की और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तुम्हें वोट उसको देना चाहिए जो सादिक हो, जो अमीन हो,
हाँ वो पीपल्स पार्टी का ना हो लेकिन नेक नियत हो और वो क्वालिटीज रखता हो, कैपेबल हो। तकरीब में हॉलैंड में मुकीम उर्दू के नामवर शायर अदील शाकिर भी शरीक हुए और अपना कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। दिल की आमादगी जरूरी थी, यानी उसकी खुशी जरूरी थी, और सिद्के दिल ऐसा लाजमी नहीं था, सिद्के दिल ऐसा लाजमी नहीं था जितनी रस्मी हंसी जरूरी थी। आखिर में गुलाम हुसैन कयानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स। दहशतगर्दी के खिलाफ OIC की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिनाजुल कुरान के सरबराह इलामा ताहिरुल कादरी सऊदी अरब पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इस्लाम से जोड़ना शिदत पसंदी के ज़ुमरे में आता है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की रिपोर्ट। शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी सऊदी अरब में इस्लामी ताउन की तंजीम के ज़ेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियाज पहुँच गए। पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो OIC की खसूसी दावत पर वहाँ पहुँचे हैं। वो तमाम ममालिक खा मुस्लिम दुनिया के हैं या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के हैं, वो कहते हैं जहाँ इस्लाम नाफिज नहीं है वो सब दारुल कुफ्र और दारुल हर्ब हैं, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना हम पर वाजिब है। ये गुमराह कौन प्रोपेगेंडा है। तो दारुल इस्लाम क्या है, दारुल हर्ब क्या है, और मुसलमान मुल्कों में उनके निज़ाम के अंदर कमज़ोरियों के बावजूद, बाज़ नकाइस के बावजूद क्या आर्म्स उठाना, असला उठा लेना और मुसल्लह जिद्दोजहद करना और बगावत करना जायज़ है या नहीं। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा, दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, दीन इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इसकी वजह से मगरबी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला। दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ ब्रैकेट करना खुद दहशतगर्दी है, खुद जुल्म है, और बल्कि इसको दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। किस तरह कि आप दहशतगर्दी को दीन इस्लाम के साथ जब ब्रैकेट करते हैं तो इस्लाम के ख़िलाफ़ फिर एक और मगरबी दुनिया में दहशतगर्द ज़हन पैदा करते हैं, और उसको इस्लामोफोबिया की सूरत में आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाकर फिर एक जंग की रास्ता हमवार करते हैं। दहशतगर्दी को बतौर एक जुर्म के, बतौर दहशतगर्दी के लेना चाहिए। इसका न कोई मज़हब है, न इसकी ज़ुबान है, न कोई इसका इलाका है। ये खुशाइंद बात है कि हमारे इस सोच को फर्स्ट टाइम मगरबी दुनिया में अमेरिका समेत एक्सेप्ट किया है। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा, OIC एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो इसके ज़रिए जहाद के असल फ़लसफ़े को उजागर करेंगे और बताएंगे कैसे लोग सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं और मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज़। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा अमेरिका, रियासत वर्जीनिया में PTI की जानिब से मुनक्किदा ज़ोहराने में शिरकत। चौधरी सरवर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपनी NGO से मुतालिक आगाही के लिए वर्जीनिया में मुनक्किदा ज़ोहराने में शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान समेत कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़िन है। CPEC में मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान बड़ी सरमायाकारी की जानिब बढ़ रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इस सिलसिले में कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। PTI हुकूमत नए पाकिस्तान की जानिब सफ़र कर रही है। हुकूमत की पहली तरजीह है कि उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे रोज़गार पैदा होगा और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। अगर आपने करप्शन का खात्मा करना है तो लोगों को सजाएं तो देनी पड़ेंगी। अगर आप ये कहेंगे कि किसी को सस्पेंड कर दिया और फिर कोर्ट में जाके बहाल हो गए तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। PTI अमेरिका के रहनुमा जानी बशीर की तरफ से मुनक्किदा तकरीब हर लिहाज से कामयाब रही। शुरका का कहना था कि वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए वो हर लम्हा हाजिर हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन।
अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी निजात सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन की दूसरी सालाना तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान और सदर ट्रंप के ख़ुसूसी मुशीर समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। तफसीलात जानेंगे वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन अमेरिका में पाकिस्तानी निजात सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके हाल ही में दूसरे सालाना इंतखाबात हुए हैं। वाशिंगटन में नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लेने की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका में काम करने वाले पाकिस्तानी निजात सहाफ़ियों पर दोहरी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वो अपने सहाफ़ती फ़राइज़ की बजावरी के साथ साथ अपने आबाई वतन की खिदमत का फरीज़ा भी सर अंजाम दे रहे हैं। We need to work with each other, and that's where we need to build that trust and that confidence to have different viewpoints, to have different opinions about different things, but at the same time तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप के खसूसी मशीर साजिद तारिड और मिंटगोमरी टाउनशिप न्यू जर्सी की मेयर सदफ जाफर भी मेहमानाने खसूसी की हैसियत से शरीक हुई। अमरीका में आम शहरियों और सहाफ़ियों को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अमरीकी इंतज़ामिया सहाफ़ियों की राय को कदर की निगाह से देखती है। Suddenly become Democrat, which take us always as a granted. And another reason why I'm Republican, because I was looking for a competitive marketplace. I was not looking for entitlements. I was not looking for socialism. If that was the intention, I probably would have walked to China and would have walked to Russia. But that was not the intention. I wanted to come here, become successful. मिंटगोमरी टाउनशिप की मेयर सदफ जाफर ने भी कुछ यूं इजहार ख्याल किया। And my background is actually in higher education. So I also teach and conduct research at Princeton University. And something that's very dear to my heart as an academic is providing. पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन बिलाशुबा पाकिस्तानी नियाद अमरीकी सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके अरकान 1 साल के लिए मुंतखब होते हैं। तंजीम के अरकान नौ मुंतखब ओहदेदारों से नेक ख्वाहिशात रखते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान की जाने मैली आंख से देखने वाले भारत ने पहले त्यारा गंवाया, फिर झूठे दावे बेनकाब होने पर भरम गंवाया और अब झूठ पर झूठ बोलकर खिफ़त मिटाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इंडियन फ़ज़ाइया ने एक बार फिर F-16 त्यारा गिराने का दावा किया, मगर शवाहिद देने में नाकाम हो गया। 27 फरवरी को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों के हाथों बनने वाली दुर्गत भारतीय फ़िज़ाइया के आसाब पर सवार 6 हफ्ते बाद एक बार फिर पाकिस्तानी F-16 तबाह करने के बुलंदो बांग दावे कर डाले, मगर शवाहिद पेश करने में इस बार भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। F-16 उनका गिराया गया हमारे MiG-21 पायलट के हाथों से। There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission. 27 फरवरी से अब तक भारत मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी F-16 गिराने का खोखला दावा कर चुका है, लेकिन पहले पाकिस्तान ने, फिर आलमी मीडिया ने और उसके बाद अमेरिका ने इसके झूठों की कलाई खोल दी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, डंके की चोट पर सबूत दिखाए, लेकिन खुद फरेबी का शिकार भारत अपने अवाम को खुश करने के लिए लव प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए है। भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा ठोस शवाहिद पर बात करता है और करता रहेगा, और अगर दोबारा इश्तियाल अंगेजी हुई तो फिर भी मुकम्मल सबूत के साथ जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।